is much more than just the iconic Taj Mahal. It's a destination that deserves a 3-night, 4-day visit to fully experience its rich cultural, culinary, and historical offerings. Beyond the timeless beauty of the Taj, Agra boasts a vibrant culinary heritage, from the iconic petha to the flavorful dal moth, offering a delightful journey for food enthusiasts. The city's cultural richness, warm hospitality, and historical landmarks like Agra Fort and Fatehpur Sikri make it a perfect hub for MICE tourism and destination events. With its endless discoveries, Agra invites travelers to explore its diverse experiences, from its bustling markets to its serene gardens, positioning itself as a holistic destination that goes beyond the Taj. Whether you're a history buff, a foodie, or a business traveler, Agra promises an unforgettable experience that showcases its true essence and charm. Please introduce yourself. Hi, my name is Shirley. I am here in India with a large group of friends, and we are all from Scotland. One of the biggest changes for us is the temperature, because in Scotland it's still very cold at the moment. Here it is very warm for us. We've all had a marvellous time so far. We are just stunned by the colours, the beauty. The sightseeing has just knocked us all completely. It's wonderful. And so we have really enjoyed our time. What place you have seen by now? Oh, we have been to the Taj Mahal, Agra Fort. Where else have we been for? Baby Taj, the garden. Baby Taj. And some part in Delhi. Yeah, before that we were in Delhi. We're going back to Delhi and see more sites there. And our first week we were in Pune at a girl guiding centre where we all stayed and made new friends and were involved in some community projects. So it's all been very rewarding. Wow. And what's about this property you were staying in? It's one of the finest property out here. This hotel has been very comfortable. Oh, yes, Yeah. we have had the very best tourist guides. Thank you, sir. Thank you very much. Any complaints with the guide? Anyone? What do you like most? The people, the colors, or the destination? India. The people, and then the colours for me. People, because the people are colourful. Thank you. Thank you. अकबर जिनकी 3 रानियां थी, as we have a lot of controversy about it, तो अभी हम यही रखेंगे कंट्रोवर्सी को. अकबर की 3 रानियां थी, मुस्लिम, क्रिश्चियन और हिंदू. मुस्लिम जिनका की नाम था रुकैया बानो. She was from Turkey, which we known as Turkey Sultana, which means a princess of Turkey. Second थी मरियम, जो कि गोवा से बिलोंग करती थी और गोवा फाउंडेड बाय वास्को डी गामा इन 1498. थर्ड और आखिरी थी महारानी जोधाबाई, जो कि राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी. शी वाज फ्रॉम आमिर. तो उनकी 3 रानियां थी अलग अलग धर्म से, लेकिन उनको कोई औलाद नहीं थी. अकबर मन्नत मुराद विश करने के लिए कई जगह गए, बट फाइनली जब वो अजमेर शरीफ पहुंचे तो वहां उनको एक ड्रीम हुआ कि अकबर आप फतेहपुर सीकरी जाएं, जहां से आपकी विश पूरी होगी. Then he came here barefoot and he met with the Sufi saint जिनका की नाम था हजरत शेख सलीम चिश्ती, जो कि यहाँ रहा करते थे. अकबर ने आकर के उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे लिए दुआ करें जिससे कि मुझे बेटा हो जाए, और मुझे बेटा ही चाहिए क्योंकि मुझे अपना वंश आगे बढ़ाना है. तो चिश्ती साहब के एक बेटे थे जिनका की नाम था वाली मियाँ. He was around 6 months old. वो पालने में झूल रहे थे. 6 महीने की उम्र में कोई नहीं बोलता. When he stand up and said, Father, अब्बू जान, अकबर इस भारत के, इस देश के, इस सल्तनत के बहुत बड़े बादशाह हैं. इनको हमसे ज्यादा बेटे की जरूरत है. आप इनके लिए दुआ करें अल्लाह से ताकि इनको बेटा हो जाए. 6 महीने की उम्र, ना कोई खड़ा होता है ना कोई बोल पाता है. उन्होंने बोला, उसके बाद ही डाई, वो दुनिया से चले गए. आज भी उनकी कब्र वहां बनी हुई है जिनका की नाम है वाली मियाँ. तो उनकी छोटी सी मजार है. तो अकबर ने उनसे आके के रिक्वेस्ट की, कहा कि मुझे बेटा ही चाहिए क्योंकि मुझे अपना वंश आगे बढ़ाना है. तो चिश्ती साहब ने ऊपर वाले से दुआ की और कहा कि जब तेरे बेटा होगा. एग्जैक्टली द टाइम एंड डेट गिवन बाय शेख सलीम चिश्ती, अकबर को महारानी जोधाबाई से एक बेटा हुआ जिसका की नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम के ऊपर सलीम रखा गया, और बाद में उस बेटे का नाम जहांगीर हो गया. जहांगीर मीन्स जहां का बादशाह, किंग ऑफ द वर्ल्ड.
और जोराबाई प्यार से उन्हें शेखू बाबा कह के बुलाती थी। वो नहीं चाहती थी मैं इनका नाम सलीम लूं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े गुरु हैं। जब उनको बेटा हुआ, अकबर ने अपनी कैपिटल बना ली, क्योंकि उनकी ऑलरेडी उन्होंने कहा था कि जब मुझे बेटा हो जाएगा so I will move my capital here। जब बेटा हुआ तो अपनी राजधानी बना ली। When he got the son, he built the palaces, जहां वो रहने लगे अपनी रानियों के साथ। जब चिश्ती साहब दुनिया से चले गए, so he built the another complex, जहां पर दरगाह शरीफ है, जमा मस्जिद है, जहां आज भी लोग those who believe in that जाते हैं, मन्नत मुराद करते हैं और धागे बांधते हैं, जो कि पुराना ट्रेडिशन आज भी चला आ रहा है। और ऊपर वाले की दुआ से मन्नतें आज भी पूरी होती है। Doesn't matter for baby, you can try to make any other wishes also for good health, wealth, life, job, marriage, children, love, education, future, family। कोई भी मन्नत मुराद विश कर सकते हैं, उनके थ्रू आप ऊपर वाले से कुछ भी मांग सकते हैं। झील का पानी सूख जाने की वजह से अकबर ने ये जगह छोड़ दी और वापस आगरा चले गए। तो ताजमहल के पीछे तो एक रिवर है यमुना, यहाँ कोई रिवर वगैरह नहीं थी। लेक ऑफ नॉलेज हम कह सकते हैं, क्योंकि इनको एक यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का लास्ट पार्ट है, इसके 5 किलोमीटर के बाद राजस्थान स्टार्ट हो जाता है। तो 3 तरफ राजस्थान है और इस तरफ से आप आ रहे हैं उत्तर प्रदेश ही है। तो जब राजस्थान इट्स अ डेजर्ट एरिया, जो कि ड्राई स्टेट्स में शुमार है, बहुत ज्यादा नजदीक होने की वजह से यहाँ लेक सूख गई। जब लेक सूख गई तो उसके बाद ही डिसाइडेड टू लेफ्ट एंड मूव बैक टू आगरा इन आगरा फोर्ट। व्हेन ही लेफ्ट, एवरीबॉडी लेफ्ट, एंड आफ्टर दैट इट वाज टोटली अबैंडन्ड, व्हिच वी कॉल घोस्ट सिटी और द घोस्ट टाउन। बट वी डोंट हैव एनी घोस्ट हियर, कोई भूत वगैरह नहीं है। हाँ, वो तो आती रहती है सर, कभी आओ तो मिलेगी कि जरूर। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, वहां तो मिलेगी जरूर, पक्का, डेफिनेटली। वो सर क्या करें, ब्लॉगर हमारे ऐसे कुछ भी बता देते हैं कहीं से भी ला करके। लाल नहीं, ये वाले तो अच्छे वाले ना, मैं उन वाले की कह रहा हूँ। वो है दीवान ए आम, विच मीन्स द हॉल ऑफ कॉमन पीपल। इट वॉज फॉर द पब्लिक ऑडियंस। अकबर वहां सामने बैठे थे, देयर वाज द चैम्बर एंड ही मेट विद द कॉमन पीपल। Then he decided with them who had a guilty or not, or who was right or wrong. When he decided with the people you have a guilty and you are wrong, after that he put that person in front of the stone ring which we have in the garden. Around the ring we have a lot of flower there. So there is the stone ring where he tied the elephant, and elephant name was Hiran. And elephant was well trained by the people as well. When King Akbar or when Emperor Akbar, he decided with the people you have a guilty, and after that he put that person in front of the elephant, and that elephant he put up the leg and crushed in that person who had a guilty in that time. Thanks God we don't have that elephant now, and we are not guilty people as well. Now we are looking Diwan e Khas, the hall of special people. अकबर के 9 नवरत्न थे, जिनका की नाम था बीरबल, तानसेन, राजा दुर्लभल, मुल्क प्याजा, अब्दुल रहीम खाना, अबुल फजल, फैजी, ईडीसी. So he had a meeting with them. The meeting was very related with the finance, land, war, property, for many more. तो उनकी यहाँ पर प्राइवेट और पॉलिटिकल मीटिंग हुआ करती थी, and after that he get out to meet with the common people, जो बाहर खड़े हुआ करते थे. Because nobody common people allowed to came in inside the residence part of Emperor Akbar. तो ये उनका खुद का रेजिडेंस पार्ट था जहां वो रहा करते थे. But here is the place where he had a meeting, which look like a duplex or double story from here. जब हम लोग अंदर जाएंगे so we will see it's just a single story, totally different which we expected from here to inside. लेकिन अंदर जाने से पहले हम सामने देखेंगे वो है पंच महल, which means a 5 historical palace. We don't have any wall. That building is supported by pillar and it is open, so we can say air palace or wind palace, जहां से मुस्लिम वाइफ ईद का चांद दिखती थी. Or other time it is used for entertainment. They just get a candlelight dinner or had a fun with their own harems. और उसके नेक्स्ट में बना था मदरसा एंड लाइब्रेरी. ऊपर की तरफ लाइब्रेरी हुआ करती थी, नीचे मदरसा. उनके 2 मंत्री हुआ करते थे 9 नवरत्नों में से, जिनके की नाम थे अबुल फजल और फैजी. पिलर इन द सेंटर, and he had his 9 ministers, those who stood on each door around the balcony where he had a meeting. The meeting was very secret, as I told you. अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसका कि नाम था दीन ए इलाही. दीन मीन्स रिलीजन, ए मीन्स वन, इलाही मीन्स अ गॉड. गॉड एक है या गॉड का एक धर्म है.
तो ये जो पिलर है यहाँ आज भी सारे धर्मों के डिजाइन मौजूद है। इफ यू लुक ऑन द टॉप देयर वी कैन सी द लोटस। लोटस इज द सिंबल ऑफ जैन रिलीजन फ्रॉम हिंदू। तो पूरा बना है ना। एंड आफ्टर दैट वी कैन सी द zigzag which is the Persian design. Down to the zigzag we can have a church. You can see the church with the cross in the middle. It is Catholic and arches are the symbol of Islam, which have a mosque design. So once again, lotus from Hindu, zigzag Persian, Catholic, and arches from Islam. It is in a one piece. We don't have any joint. That time not a machine, all done by hand with a chisel by hammer. So he was himself Muslim, but he believed in all religion. That is the reason he had a 3 wives from 3 different regions. So when the lake was dried out, ये जो जगह है ना सामने, when the lake was dried out, so he left this city and moved back to Agra in Agra Fort. So उनका सिर्फ 16 साल यहाँ पर कैपिटल रहा। उसके बाद he left this city because of water problem. ये सीकरी गांव है, फतेहपुर उस तरफ है जहाँ रिलीजियस पार्ट बना हुआ है। दोनों को मिलाकर के बोलते हैं फतेहपुर सीकरी। सीकरी जो गांव था वो सिकरवा ठाकुरों का गांव था जहां पत्थर काटने वाले लोग रहा करते थे पहले से ही। और फतेहपुर जो कि बाबर ने आकर के इसको नाम दिया। तो दोनों को मिलाकर के बोलते हैं फतेहपुर सीकरी, जिसका की मीन्स होता है विक्ट्री सिटी। तो वो सीकरी गांव है। यहाँ पानी का एक टैंक बना हुआ है। जब पानी की शॉर्टेज होने लगी तो अकबर ने ऐसे 12 टैंक अराउंड द होल मोन्यूमेंट बनवाए ताकि पानी की पूर्ति की जा सके। लेकिन दैट टाइम पीपल डिपेंड ओनली ऑन नेचर वेज। जबकि बारिश नहीं हुई, उसके बाद पानी सूख गया and he left and moved back to Agra. After the great visit of Fatehpur Sikri and Agra Fort, we went to Kyolidio National Park where we again had a very stunning experience. अब तो नेशनल पार्क डिक्लेयर हो गया तो यूं करके अलाउड नहीं है, लेकिन मेडिसिनल प्लांट यहाँ काफी हैं। अच्छा राणा जी, यहाँ पर जाने के लिए ये रिक्शा ही है? हाँ, ई रिक्शा है। 1 साल पहले यहाँ पर पैडल रिक्शा चलते थे, उसमें 2 लोग बैठते थे, लेकिन अब ई रिक्शा शुरू हो गया है तो रिक्शे वालों के लिए भी काफी राहत है। अब उनको अपनी शारीरिक मेहनत बच रही है, उनकी एनर्जी, और उनको भी अच्छा लग रहा है। और साथ में 4 लोग बैठ जाते हैं तो ये भी अपने आप में अच्छी बात है। आगे है 1 मीटर, उसका नाम है कैटल ई ग्रेट। ई ग्रेट की यहाँ 4-5 प्रजातियां मिल जाती हैं। 5 प्रजाति मिल जाती है। ये छोटा वाला है। इसके बाद आप लोग लेफ्ट साइड में देखेंगे जो लकड़ी पर बैठा हुआ है, उसका नाम है लिटिल कॉर्मोरेंट। कॉर्मोरेंट की 3 प्रजाति मिलती हैं। ये पानी में डाइव करते हैं, मछली पकड़ते हैं और आनंद से खा पीते हैं। एक बर्ड उड़ के आया है अभी, इसका नाम है पर्पल हेरोन। अभी बैठा है यहाँ करके। तो 4 प्रजाति हमें दिख रही हैं, कैटल ई ग्रेट, ग्लोसी आइबेस, पर्पल हेरोन और लिटिल कॉर्मोरेंट। और सभी के शारीरिक बनावट अलग है, रंग अलग है, तो भोजन भी अलग है सभी का। कुछ कॉमन भोजन हो सकते हैं जैसे मछली मेंढक खाने का, लेकिन उसकी चोंच अलग है तो वो स्नेल्स को पसंद करता है। और फिशिंग एक्टिविटी यानी भोजन प्राप्त करने की भी एक्टिविटी अलग अलग है। कुछ पक्षी ऐसे हैं जो पानी के अंदर डाइव करके अपना भोजन तलाशते हैं। कुछ पक्षी ऐसे हैं जो किनारे पर बैठेंगे, वहां से भोजन तलाशेंगे। तो उसी के अनुसार इनकी शारीरिक बनावट दी गई है। At the end, I would like to say exploring Agra beyond the Taj Mahal was an incredible experience, and we discovered so many hidden gems. If you ever get the chance, make sure to visit and see the beauty of Agra beyond just the Taj. You won't be disappointed. Thanks for watching. You are watching Travel World Online.